السلام علیکم میرے ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پر امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جہاں جہاں آباد ہیں خوش ہوں، شاد ہوں، آباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آپ اپنا اور اپنی فیملیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر آپ سب سن رہے ہیں نمرہ احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت رومانٹک ناول جنت کے پتے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی، اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل سٹینڈ نظر آ رہا تھا۔ اس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پہ تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ وہ ابھی اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبد الرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تب وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے فرض کے لیے آئی تھی یا کسی معاملے کے حل کے لیے وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبد الرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلی کی پوروں پہ لگی موم کھرچی، پھر پلٹ کر اس طرف آئیں۔ عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کل بلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر عورت کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔ اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا اس کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے۔ آنکھوں پہ موٹے فریم کا چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے۔ نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند ہونے پر ڈر گئی تھی، مگر اب اس کو ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائی۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چٹکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے اپنی الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی بار تمہیں پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سبانجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی۔ اسی دوپہر اس نے یہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا۔
इसे अब्दुल रहमान ने ही तुम्हारे ताक़ुब पे लगाया था। डॉली इसकी आबाई घर का पुराना खादिम है, बरसों से हमारे साथ है और वो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहाँ तक ताल्लुक है इस मेजर का, जिसको तुमने उसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, इसकी मदद भी अब्दुल रहमान ने तुम्हारी वीडियो हटवाने के लिए ही ली थी। ये अलग बात है कि इस वक्त अब्दुल रहमान उस बात से लाइल्म था कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी जानती हो कौन है? उसने धीरे से नफी में सर हिलाया। कर्नल गिलानी वो थे जिसको तुम्हारे फूफा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने केस में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सजा काटी और गो के वो बाद में रिहा हो गए थे। उन्होंने कैद की सोबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथों जिंदगी हार दी। इस मेजर की शादी होने वाली है। उसने तुम्हें सिर्फ अपने किसी जाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहा था, मगर तुम बेफिक्र रहो, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये था सारा खेल, एक बाअसर शख्स के अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए इस्तेमाल करता कुछ मोहरों की कहानी। सारी गुत्थियां सुलझ गई थीं। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो जरा सर्द लहजे में बोली। तुम ये घर देख रही हो, बबू कदा में इस वक्त बिजली का कोई पोल मरम्मत के बाइस काम नहीं कर रहा। सो इस इलाके में बिजली बंद है, वरना जिस घर में तुम बैठी हो वो बबू कदा का सबसे खूबसूरत, सबसे आलीशान महल है। ये दौलत, ये शान शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ और एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाकईतन मोहब्बत करता है, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इसे कबूल कर लो, अगर तुम अब्दुल रहमान से शादी कर लो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया है। हया ने एक गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है, जब कोई शख्स किसी औरत को अजियत देता है और इसकी बेइज्जती का बाइस बनता है, तो क्या होता है? वो औरत इसकी इज्जत करना छोड़ देती है। मैंने भी अब्दुल रहमान पाशा की इज्जत करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा जवाब साफ इनकार है। क्या है इस एक मामूली से रेस्टोरेंट ओनर के पास जो अब्दुल रहमान पाशा के पास नहीं है? वो जरा हैरान हुई थी। इसके पास हया सुलेमान है और अब्दुल रहमान पाशा के पास हया सुलेमान नहीं है। वो बहुत इस्तिजाया से चबा चबा कर बोली। वो खातून लाजवाब सी खामोश हो गई। और अगर वो ना रहे, तब भी तुम्हारा जवाब इनकार ही होगा। वो एकदम अंदर तक कांप गई। ये धमकी है? नहीं, महज एक सवाल है। मेरा जवाब फिर भी इनकार होगा। ठीक है, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। अब्दुल रहमान जबरदस्ती का कायल नहीं है, ना वो इश्क में जोग लेने वाला शख्स है। वो आज के बाद ना तुम्हें फोन करेगा, ना तुम्हारा पीछा करेगा, ना पीछा करवाएगा, ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी वो दो ढाई ढाई माह से कबल इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा और इसके आने तक तुम जा चुकी होगी। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हो तो मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे दूं कि वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। उसने अपना क्लच उठाया और तेजी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो। कभी दोबारा बबू कदा आना हो तो इधर जरूर आना। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तारीख राहदारी के दूसरे सिरे पे बने दरवाजे का नॉब उसने घुमाया तो वो खुल गया। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर शाम की नीलगू रोशनी डूब रही थी। हर सू अंधेरा छाने लगा था। दरवाजा बंद करके आगे रविश भी आई। इसी पल बाहर से किसी ने सफेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी इसे वो दोनों साफ नजर आ रही थी। वो तुर्क में बातें करती, हाथ में हाथ डाले चली आ रही थी। वही गहरे जामनी फ्रॉक वाली बच्ची और भूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की, जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। इसे सामने से आता देखकर थथक कर रुकी।
حیا तेज कदमों से आगे बढ़ गई। भूरे स्कार्फ वाली लड़की रुककर गर्दन मोड़े इसे जाते देखे गई। बच्ची ने इसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर अंदर की तरफ जाते आबनूसी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। हया तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ से आती हवा मजीद सर्द हो चली थी। नीलगु स्याह पड़ती शाम दम तोड़ रही थी। जब तक वो वापस बंदरगाह पर पहुंची, शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तारीख रात, वीरान समंदर, पुरस्रार जजीरा। इसका दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात की फेरी कितने बजे आएगी? उसने टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। इसका मोबाइल जहान साथ लाया था, मगर वो वापस नहीं ले सकी थी, और जहान और डीजे के मोबाइल नंबर्स इसे जुबानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे और परेशान होंगे, वो अंदाजा कर सकती थी। 8 बजे टिकट चेकर ने जवाब देते हुए बगौर इसे देखा, फिर साथ रखा कागज उठाकर देखा। आर यू हया सुलेमान, पाकिस्तान टूरिस्ट टूरिस्ट। उसने कहने के साथ वो प्रिंट आउट उसके सामने किया, जिसमें इसकी और डीजे की आज दोपहर की खींची तस्वीर प्रिंट की गई। यस, आई एम। मेरी फेरी निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं? फरते जज्बात से इसकी आंखें डबडबा गई थी। उसने सोच भी कैसे लिया कि वो इसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन, कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस ऑफिसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची, तो अंदरूनी कमरे में इसे वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पर सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी, जबकि जहान उंगली उठाए दुरुस्ती से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाबन नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की साई कर रहा था, मगर वो नहीं सुन रहा था। चौखट पे आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। इसकी उठी उंगली नीचे गिर गई, लब भींच गए। एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर इसकी जानिब आया। किधर थी तुम? इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैं खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा, तो तो आधे बबू कदा ने तुम्हें इसके पीछे भागते देखा। अकल नाम की चीज है भी तुम में या नहीं? एक पर्स के लिए तुम इसके पीछे भागी? फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम्हें इस बात का कोई ख्याल था? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों न भागती मैं इसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, सुबांची का कार्ड था। बाद में परेशानी होती कि, और जो परेशानी हमें हुई वो हम इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह पूरे जजीरे पे ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे जो इसके चिल्लाने के बायस रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और इसके गले लग गई। हाया, तुम बिल्कुल पागल हो। इसकी आंखें रोने से मुतर्रम थी। वो दोनों फिर रोने लगी थी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वो बना कर कहता हुआ वापिस पुलिस ऑफिसर की तरफ पलट गया। वो अभी तक रोई जा रही थी। इसे पता था कि वापसी पे जहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाजा धकेल कर अंदर आई तो हर सू अंधेरा छाया था। लिविंग रूम से टिमटिमाती जर्द रोशनी झांक रही थी। आए, उसने जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखी स्टैंड पर धरी और बच्ची का हाथ थामे लिविंग रूम की तरफ आई। सोफे पर वो मुअम्मर खातून इसी तरह बैठी थी। इनके हाथ में चंद नोट थे, जो वो गिनकर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा इन नोटों को देख रहा था। सलाम अलैकुम। आने, कैसे हो अब्दुल्ला? उसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रिप उतारते हुए बड़ी मेज की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़के ने मोहम्मद खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बचवे में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? बचवा बंद करते हुए उन्होंने पूछा। वहां बंदे काम कर तो रहे थे, अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी। मेरा काम था, उन्होंने बच्ची का हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया। जवाब जो अब इनके साथ सोफे पे आ बैठी थी।
काम भी था और आने ने इसे पैसे भी दिए। आयशे गुल, तुमने देखा, वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया। रोज बहाने बना देता है। बच्ची नाक सकोड़ती कह रही थी। अपने परस को खंगालती आयशे ने पलटकर खफकी से इसे देखा। बुरी बात है बहारे, किसी के पीछे इसका यूं जिक्र नहीं करते। वो एक नजर इस पे डालकर वापिस अपने परस में से कुछ ढूंढने लगी थी। और ये वो लड़की थी ना। चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिर गए तो उसने पर्स की चीजें हाथ से उलट पुलट करते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी। ये अब्दुल रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा। वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है। क्या कह रही थी। साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुल रहमान चला गया। उसने बात पलट दी। हाँ, आज सुबह की फ्लाइट थी ना, वापसी का नहीं बताया। कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफा वो वापस ना आए। जाने दो आने, वो हर दफा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुरा कर बोली। एक हाथ से अभी तक वो परस में कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है, आयशी मुझसे नाराज है। बहारे अपने नन्हे नन्हे से जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज के साथ खड़ी आयशे को देखा, जिसकी इनकी तरफ पूछती थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहीती पे ये असर हुआ कि आज ये बाजार में आइन सड़क के वस्त में खड़ी अपना पोंचू कहीं गिराकर सयाहों के कैमरों में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे, तुम इसे समझाओ ना, नाराज ना हो। किस किस को समझाऊं? सफीर कहता है इसके माँ बाप को समझाऊं। इसके माँ बाप कहते हैं सफीर को समझाऊं। आप कहती हैं बहारे को समझाऊं। बहारे कहती है मैं खुद को समझाऊं। और अब्दुल रहमान कहता है। वो लम्हा भर को रुकी, फिर सर झटक कर परस की चीजें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुल रहमान क्या कहता है? कुछ नहीं। उसने नफी में सर हिलाया, फिर जरा सी गर्दन मोड़कर बहारे को देखा, जो चेहरा हथेलियों पे गिराए आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत खफा किया है बहारे। मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो अच्छी लड़कियां कैसे करती हैं आयशे गुल? बहारे ने मुंह बिगाड़ कर इसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं। वो हर जगह नहीं चली जाती। वो हर किसी से नहीं मिल लेती। वो हर बात नहीं कर लेती। उसने परस मेज पर उलट कर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ। बहारे पल भर में रूखी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती। बस इससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिस पे अल्लाह इससे नाराज हो जाता है। और जानती हो, जब अल्लाह नाराज होता है तो वो क्या करता है? क्या कहा? जब वो नाराज होता है तो वो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हो कि अकेला छोड़ना कैसा होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो दुआ कबूल नहीं होती। वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती। वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज पे निकली अशिया उलट पलट कर रही थी। खाली परस साथ ही ऊंधा रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफीर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था। यहीं परस में रखी थी। पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुल रहमान ठीक कहता है। आयशे गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आयशे गुल सब ही कुछ करना सीख जाए। इनकी बात पे उसने एक तलख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीजों को वापस परस में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रखकर भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ जरा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया। तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसी मसरूफ हुई कि कहीं आ जा नहीं सकी। वो वस्त मार्च के दिन थे। इस्तांबुल पे छाया कहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हर सू गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पे बर्फ की जमी सफेद तह नजर नहीं आती थी और सबांची का सब्जा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन इन दोनों ने टॉप कपी पैलेस म्यूजियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर इसी वक्त हाले आ गई। इसके पास दूसरा प्रोग्राम था।
میلیو کینٹ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں؟ اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسی کوئی نیکی کرنی نہیں ہے۔ ڈی جی اپنا پرس بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ ہو چکا ہے۔ یہ موقع اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا ہے۔ اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چونکی پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پہ کھلی کتاب سے پڑھ کر ترک میں درس دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پہ بھی ڈال لیتی، جو سروں پر دوپٹے لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خانہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ لے، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے حجرہ اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار ہرا، وہی مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ ترک اردو جیسی ہی لگتی تھی، اور وہ واقعتاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسما کے باعث سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ، شکریہ۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی۔ اب انہیں ٹوپ کپی پیلس جانا تھا، وہ لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جی ہنس دی۔ پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال سٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم دم بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گئے ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر آپ تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال سٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی، وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز تیز چل رہی تھی۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ سٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھی تاکہ چھینے نہ جا سکیں۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی، اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے سٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا، بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی، اشتہا انگیز سی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئے۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر، دونوں نے چوکھٹ میں کھڑے ہو کر آواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کے ان کو دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جوگرز پہنے پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھی۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھوں میں ایک گائیڈ بک، گویا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی سٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر پٹک کر رکھی۔ اس پہ لکھا تھا آئی ایم بیزی، ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا،
फिर हया वही चौखट के साथ शेक लगाए, बाजू सीने पे लपेट जीरे लब मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी, जबकि खदीजा मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप कपी पैलेस जा रहे हैं, खदीजा ने काउंटर के सामने आकर इतला दी। इस्तकलाल स्ट्रीट से बाहर निकलो, टाकसम से म्यूनसिपलिटी बस पकड़ो, वो पहुंचा देगी। वो सर झुकाए, एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़े दूसरे हाथ से खटखट छुरा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से राब्ता करो। डीजे ने पलटकर हया को देखा, उसने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो वापस जहान की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से कोई फिर टॉपकपी के किले में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। एक दफा फिर सोच लें, लिख कर दे दूं, वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखने लगा। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा, एक बात बताएं, इस्तकलाल स्ट्रीट में जेब कतरे होते हैं ना? डीजे ने इसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीब ही चार्जिंग पे लगा था। हाँ, तो समझे आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फोन उचका, तार निकाली और हया के साथ आ खड़ी हुई। फोन वाला हाथ उसने कमर के पीछे कर लिया। क्या मतलब? इसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रोककर इन्हें देखने लगा। मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ टॉप कपी पैलेस नहीं चले तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जवाहर तो खरीद ही लेंगे। वैसे फोन अच्छा रखा हुआ है आपने। वो उलट पलट कर मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से तो कम का नहीं होगा। वो छुरा रख कर इनके सर पर आ पहुंचा। मेरा फोन वापस करो। कड़ी निगाहों से इन्हें देखते हुए उसने हाथ बढ़ाया। टॉप कपी से वापसी पे दे दूंगी, वादा। मतलब तुम लोग मुझे यरगमाल बनाकर ले जाओगी? कोई शक? वो पहली दफा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम दोनों निकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूंगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बुड़बुड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता वो इनके साथ बाहर निकला। टॉप कपी सराय के सामने वो सब्जाजार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी, वो दोनों इसके इतराफ में। जहां ये टॉप कपी सराय का मतलब क्या होता है? मैं एक यरगमाल शुदा गाइड हूँ और यरगमाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले चिंगम चबाता शाने उचकाकर बोला, मैं बताती हूँ। टोप कपी का टोप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम टाकसम बना, वैसे ही तोप टोप बन गया। कपी कहते हैं गेट को, सराय हो गया महल। तो तोप कपी सराय बना कैनन गेट पैलेस। आई हैमा जीनियस, है ना जहान? मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त खफा था। टॉप कपी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा था। सुरमई अजीमुल शान किला नुमा महल, जहाँ खास कमरों के पहरेदार गूंगे बहरे हुआ करते थे ताकि राज महल से बाहर ना निकले, और जिसके कोन नुमा मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे। सुल्तान का अजीम विरसा और असासे, चीनी पोर्सलीन के नाम और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिला खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 के रात के जवाहरात से मज़य्यन सुल्तान के शाही लिबास निगाहों को हैरा करते थे। ये मनहूस गार्ड हमारे सर पर ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे इन आंखें चुंदिया देने वाले कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में घिर चुकी थी। पवेलियन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मुतबरकात थे,